Hello student, today we will discuss the modern play in the Dollhouse. Dollhouse में सबसे पहले biography of the writer. It was written by the Norwegian writer Hernik Ibsen, and the significance of the title जैसे कि हमें title से पता चल रहा है, the Dollhouse. The Doll's House is written from the perspective of the woman, the role of the woman in Norwegian society, and the role which was determined by the society according to their own will instead of on the basis of equality. And it also shows the discrimination in that society which segregate the human being, man and the woman, and a role डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैन एंड द वुमेन. यहाँ पे एक्स 3 एक्स हैं जिसमें मेजर जो करेक्टर्स हैं, जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की नोरा है, हेल्मर और हेल्मर टॉरवेल्ड. ही इज़ द हस्बैंड ऑफ नोरा. डॉक्टर रैंक, ही इज़ द नेबर, एंड मिसेस क्रिस्टाइन लिंडा. और ये जो है शी इज़ द फ्रेंड ऑफ द नोरा एंड शी मेट विद हर आफ्टर 9 to 10 years. Mr. Neil Croxted, he is working in the bank with Mr. Helmer, and now his reputation has been question marked due to his sinful acts, and unable to perform the duties with honesty. एंड चिल्ड्रन है, बॉबी है, एमी है, एवर है. इसी तरह हेलन है जो कि हेलन मेड्स है, एंड द पोटर है, द पर्सन हु डिलीवर द क्रिसमस ट्री. और इसी तरह एनी, एक एनी मेड है, शी इज़ ऑल्सो द मेड, we can say the nanny of the Nora. सेकेंड, अगर हम इसकी स्टोरी को थोड़ा सा इसको थीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो पहला जो है पेरेंटल ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें ये कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोरल करेक्टर ऑफ द children, and they are responsible for their character building, or it's an obligation of the parents to show them the right path. If they are unable to show them right, good and bad, they will not be able to perform as a good human being and perform as a good citizen in the society. तो ये responsibility parents की obligation को represent करते हैं, जिसमें the Nora, she is the protagonist, and she is a habitual of the fibs, और telling a lie, झूठ बोलती है in case she has eaten the macarons, and when her husband asked about did she eat, and she denied. तो यूजुअली इसी किस्म के जो है झूठ फेब्स वगैरह का इस्तेमाल कर रही होती है, और बेसिकली ये दिखा रहे होते हैं कि हाउ दीज काइंड ऑफ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रंस. और इसी तरीके से दो हेल्मर टॉरवेल्ड वो कहता है कि नियरली ऑल द यंग क्रिमिनल्स हैड अ लाइंग मदर, कि जो जितने भी क्रिमिनल्स यहाँ होते हैं उनकी यंग एज में बेसिकली उनकी मदर ने उनके साथ झूठ बोला होता है. दैट्स वाई बिकॉज दे बिकेम द क्रिमिनल एंड लॉयर. तो सिमिलरली ऐसे कि ये जो झूठ और जो हैबिट्स होती हैं, बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन. सेम लाइक दैट नोरा, her husband considered her as a threat personality who usually spent the lot of money in the luxurious way, or basically she got that habit from her father. तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे होते हैं कि इसी तरीके से आप एक और कैरेक्टर हैं जैसे डॉक्टर रैंक है. he has a disease which he received from his father. That was the venereal disease होता है, जो कि सेक्चुअल प्लेयर होता है इस किस्म का. वो डेवलप किया बिकॉज हिज फादर वॉज हैबिचुअल टू क्रिएट द फेयर विद द अदर वुमेंस. तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से डिसीज़, डॉक्टर रैंक कहते हैं ये एक डिसीज़ की तरह पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं. सेकेंड जो है चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर देखें, इसमें मिसेस लिंडा, शी वॉज द लेडी, शी मेट विद नोरा आफ्टर 9 to 10 years. बिफोर दैट when she was young, but her mother was sick, and her brothers were very young, so she decided not to marry. और उसके बाद after that she married with a rich man, but when he died there was no money available. तो उस time पे usually she spent her life in a very difficult situation, and she did the different kinds of jobs.
तो ये उसकी एक प्रोफेशनल लेडी की एक लाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली द राइटर इज गिविंग the two pictures of the two ladies. One is the Nora Halmer, and other one is the Linda. And both the characters, basically, he is trying to give us a comparative study of these two character, professional lady and the lady who's usually perform his duties in the home. और किस तरीके से मिसेस लिंडा ने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को अपनी मदर के लिए, अपने भाइयों के लिए, व्हेन दे ग्रोन अप. और उसके बाद जब शादी की तो उसके बाद जो हस्बैंड कुछ अर्सा रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसको उसका डेट को उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगा. तो ये जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं, साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी भी दे रहा है दो करेक्टर्स की. इसी तरीके से जो वुमेन इंडिपेंडेंस के हवाले से अगर देखें तो बेसिकली इस ड्रामे में नोरा वॉज द पर्सन, she always obeys the saying of her husband. Whatever he says, whatever he directs, she always try to follow her husband. और similarly इसी तरीके से अगर आप देखें तो even he always considered her as a lower personality. She is below than him as compared to the intelligence के हवाले से अगर आप देखें तो वो उसे consider करता था कि she is not as much intelligent as he is. So बेसिकली एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, किस तरीके से मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, किस तरीके से वुमेन को पोर्ट्रे कर रही है. और एक माइंडसेट है लोगों का, और विक्टोरियन एज के जो टाइम को भी डिपिक्ट करे, किस तरीके से विक्टोरियन एज में जिस तरह औरतों को इक्वल ह्यूमन बींग्स कंसिडर नहीं किया जाता. तो बहुत सी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो हैं वो उस टाइम की, उस सोसाइटी की, नॉर्वेजियन सोसाइटी की डिपिक्ट कर रहा है. द वुमेन शी सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर हर हस्बैंड, और इवन व्हेन ही वाज सिक शी बोरोड द लोन फ्रॉम द क्रॉक्सटेड. और उसके बाद ये बट also showing that how much woman is dependent on the man. किस तरीके से she borrowed money from Krogstad, but she has to give the guarantee of from her father's side or from her husband's side. She couldn't borrow the money without the guarantee of these people. किस तरीके से women always depend on the man. तो जिसकी वजह से प्रोमिसरी नोट पर जो है वो फेक सिग्नेचर कर देती है अपने फादर के रेफरेंस से. तो किस तरीके से वो एक नेट जो है क्रॉक्सटेड क्रिएट करता है, और किस तरीके से उसको जो ब्लैकमेलिंग करता है नोरा को मुख्तलिफ टैक्टिक्स के इस्तेमाल से. और बेसिकली ये भी दिखा रहे हैं द वुमेन शी वॉज नॉट कंसिडरिंग एज द ह्यूमन बींग. और इसी तरीके से वो कहता है बट देयर फॉर ऑल एल्स रीजनेबल एज द ह्यूमन बींग. It was tremendous pleasure to sit there. अब नोरा ने क्या किया, when her husband was sick, she borrowed the loan, और उसने because the doctor suggested her to take him to the Italy. तो उसने जितने expenses थे वो सारे bear किए लोन लेके. और after that when her husband was recovered, तो उसने जो थे वो जो लोन है मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको अमाउंट को क्रॉक्सटेड की जो अमाउंट है उसको पे किया इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी की. सम टाइम उसने पेपर वर्क किया, सम कॉपिंग पेपर वर्क करती थी, और सम टाइम रात को बैठ के मुख्तलिफ तरीक़ों से वो एक तरह से एक हार्ड वर्किंग वूमेन के तौर पर विदाउट द नॉलेज ऑफ हर हस्बैंड शी वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स. इसी तरह निडल वर्क करके तो सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रही थी. बट शी इज़ नॉट टेलिंग टू हर हस्बैंड, और एक नॉर्मल देखने में वो एक नॉर्मल ज़िंदगी स्पेंड कर रही थी, लेकिन वो सारी चीज़ें जो थी शी इज़ पर्सनली शी इज़ डूइंग एंड बेयरिंग ऑल दिस थिंग्स. तो इसलिए कहते हैं इट वॉज अ ट्रमेंडस प्लेयर टू सिट देयर वर्किंग एंड अर्निंग, कि किस तरीके से वो एक एंजॉय करती है. जिस तरह एक आदमी जो होता है उस सोसाइटी के अंदर अर्निंग करता है, वर्किंग करता है और अर्न करता है, वो उस प्लेयर को एंजॉय कर रही थी. दैट्स लाइक अ वुमेन कॉल्ड हर फीदर हर. वही औरत जिसको जो था टॉरवेल्ड, जो हेलमेट टॉरवेल्ड कंसिडर करता था कि शी इज़ द फुलिश वुमेन, जिसको हमेशा वो ये चाहता था कि शी ऑलवेज ट्राई टू डिपेंड ऑन हिम. इसी तरीके से अब अगर मिसिस लिंडा और क्रॉक्सटेड की एग्जांपल देखें तो अगर आप देखें कि एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर मेल और फीमेल का जो रोल था वॉज डिटर्मिन्ड बाय द कम्युनिटी दैट वाज द मेल डोमिनेंट कम्युनिटी. जो एक सोसाइटी के अंदर एक स्ट्राटा होता है वो दैट वाज द मेल,
जो डिसाइड करते हैं वेदर शी विल परफॉर्म द जॉब एज अ हाउस होल्ड, एज द मेड, एज द नर्स, एज द टीचर, लाइक दैट। एक माइनर से रोल दिए जाते थे औरत को। और शी हैज़ नॉट द फ्रीडम फॉर द एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी नहीं है। शी कुडेंट कास्ट द वोट, वोट की भी फैसिलिटी नहीं है। इस किस्म की जो बेसिक राइट थे, इनहेरिटेंट राइट्स और इस तरह की जो चीज़ें थी, जैसे कि नोरा शी हैज़ टू डिपेंड ऑन द फादर और द हस्बैंड टू गिव द गारंटी। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो पोर्ट्रे कर रही थी नॉर्वेजियन सोसाइटी को, किस तरीके से औरतों को देख रहे। इवन द वुमेन हैज़ नॉट एनी राइट टू सेलेक्ट द ग्रूम, ठीक है। और इसी वजह से नोरा और जो टॉर्वेल्ड था उनका आपस में जो पर्सनल रिलेशन था दैट वाज नॉट गुड, जिसमें हमेशा जो टॉर्वेल्ड था ऑलवेज ट्राई टू शो दैट ही इज़ द डोमिनेंट ऑन द नोरा, और इसी वजह से उसे फीदर हेड के तौर पर, फुलिश वुमेन के तौर पर कंसिडर करता था। इसी तरह अगर साथ ही कंपैरिजन दे मिसेस लिंडा और क्रॉक्स्टर की एग्जांपल देता, बेसिकली मिसेस लिंडा क्रॉक्स्टर जो थे दे like each other, they love to each other, but unfortunately due to the sickness of Mrs. Linda's mother और brothers के young होने की वजह से शादी नहीं कर सके, ठीक है। बट आफ्टर दैट सर्कमस्टांसिस तरह क्रिएट हो गए, दे हैव अ गुड कम्युनिकेशन, और मिसेस लिंडा जो है कन्विंस कर लेती क्रॉक्स्टेड को कि ही हैज़ नॉट टू ब्लैकमेल द Nora. Instead, she has to reveal the unpleasant secret to create a good communication with each other. Basically कि अगर आप लाइकिंग और पसंद की शादी करें तो आपकी कम्युनिकेशन, आपके फैक्शंस जो है बेटर डेवलप हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अरेंज मैरिज। ये एक पर्सपेक्टिव है, मे बी यू एग्री और नॉट। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको थीम को मैं डिस्कस करना चाह रही थी इसी वजह से, ताकि वन बाय मुख्तलिफ पहलुओं को हम देख सकें। फिर है राइट ऑफ मैरिज, कि यही वो राइट था जिसे मिसेस लिंडा ने यूज़ किया। एट लास्ट शी डिसाइडेड कि शी विल डू द वर्क इन द बैंक, और अगर जो है नोरा जो है विल हेल्प हर इन गेटिंग द जॉब फ्रॉम द हस्बैंड रेफरेंस, फ्रॉम हर हस्बैंड रेफरेंस। तो इस तरीके से जो क्रॉक्स्टेड है ही विल नॉट ब्लैकमेलिंग टू नोरा एंड ही विल बी एग्री ऑन दैट पॉइंट। इसी तरीके से टेरेंटेला एक डांस है, दैट वाज अ इटालियन इंस्पिरेशन ली गई। टेरेंटेला जो डांस है इसको दैट वाज एज द रिजल्ट ऑफ द बाइट ऑफ द पॉइजनस स्पाइडर। स्पाइडर के काटने की वजह से जो जहर आपकी बॉडी के, उसकी वजह से वो आपको अर्ज एक क्रिएट होती है डांस करने की, उसमें इसका भी जिक्र आया। इस तरह इस सारे प्ले के अंदर आपको फेमिनिस्टिक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएंगे कि किस तरह मैरिटल स्टेटस के अंदर मेल और फीमेल बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड दे कैन to the better job and for the better structure of the society. इसी तरीके अगर सिम्बलिज्म को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ इसमें, डोल हाउस, बेसिकली डोल हाउस इज रिप्रेजेंट द वुमेन स्टेटस इन दैट नॉर्वेजियन सोसाइटी। कि डोल हाउस जो था बेसिकली एक ऐसा हाउस है जिसमें नोरा की हैसियत एक डोल हाउस, एक डोल ही किसी थी, जो कि शी was creating an impression due to her physical charm and the beauty. सिर्फ और सिर्फ टू गिव द फिजिकल इम्प्रेशन और उसकी जो एबिलिटीज़ और उसके इंटेलेक्चुअल लेवल था उसे इग्नोर किया गया, ठीक है। यही वजह है कि हर हस्बैंड एंड हर ओन रिलेशनशिप वाज नॉट गुड, जिसमें बेसिकली इसलिए वो ऑल द टाइम ही वाज ट्राइंग कि आई विल एडवाइज यू एंड आई विल डायरेक्ट यू। ये उसकी एक, उसके हस्बैंड जो टॉर्वेल थी ये उसकी ख्वाहिश थी। तो जो नोरा की हैसियत थी वेदर शी वाज परफॉर्मिंग एज अ wife, as the mother, लेकिन as a human being, as a woman, she was not performing her own, she was in search of the identity of her own self. इसी तरीके से नोरा मेंटल कंडीशन ये भी रिप्रेजेंट कर रही होती है कन्फ्यूजन को, उसके स्टेट ऑफ माइंड को, कि शी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। जैसे वो बार बार बोलती है, क्लैपिंग करती है, नोरा नोरा व्हाट डिड आई टेल यू, व्हाट डिड आई टेल यू। ये जो ऑल द थिंग्स है ये रेपिटेशन जब हो रही है तो उसके कन्फ्यूजन माइंड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। कि शी इज़ अनएबल टू डू द डिसीजन इन हर ओन लाइफ। लेटर बॉक्स, उसकी जो लाइफ है जस्ट लाइक अ लेटर बॉक्स की तरह, जिसको बाहर से बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है बट फ्रॉम द इनसाइड इट वॉज एम्प्टी। हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड वॉज नॉट गुड, ठीक है। और ऑल द टाइम शी हैज़ टू डिपेंड ऑन हर हस्बैंड, जो चीज़ उसको पसंद आती है उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें डिसाइड करती है। इसी तरह मेंडिंग ऑफ क्लोथ्स को अगर देखें, द नर्स शोड टू द क्लोथ्स एंड वांट्स, के वो चाह रही थी उस वक्त के उसको मेंडिंग कर दे। वो रिप्रेजेंट कर रही है कि नोरा और टॉर्वेल्ड के जो रिलेशनशिप्स दैट वर नॉट वेरी गुड,
ऑन द गुड टर्म्स। तो रिप्रेजेंट करें उनके रिलेशनशिप, इनकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अफेक्शन को रिप्रेजेंट करें। टेरेंटेला डांस जो है बेसिकली इन दोनों एक अर्ज थी जिसमें जो नोरा है शी वांट टू गेट रिड फ्रॉम ऑल दिस रोल एज अ मदर एंड एज द वाइफ, जिसका कंसर्न सिर्फ फिजिकल चार्म था, जिसके अंदर जो एबिलिटी और इंटेलेक्चुअल लेवल था जिसको इग्नोर किया गया। यहाँ तक कि जब व्हेन द नोरा रिक्वेस्टेड टू द टॉवेल्ट दैट कि उसे ही हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट फॉर्जरी, वो जो फेक सिग्नेचर हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो एट दैट टाइम द टॉवेल्ट टोल्ड हिम दैट नो मैन वुड बी एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन ही लव्स। तो बेसिकली वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके सेल्फिश एटीट्यूड को, जो औरत उसके लिए सेक्रीफाइस करती है घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, बट ही वॉज एट द टाइम ऑफ द नीड, जब उसे ज़रूरत होती है, ही वॉज अनएबल टू प्रोटेक्ट हर। इसी तरीके से क्रिसमस ट्री भी रिप्रेजेंट करता है नोरा की कंडीशन को, जिसमें नोरा डेकोर कर रही होती है। उसकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसे डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री की तरह होती है जो सिर्फ दिखावा है, ठीक है। बट द पीपल डोंट नो देयर इंटरनल कंडीशंस, देयर मैरिटल स्टेटस बिटवीन द नोरा एंड द टॉवेल्ट। जैसे कि स्टार्ट में जो मिसेस लिंडा है, शी unable to guess about the condition of Nora. She was thinking Nora always has a very good condition, lifestyle, और ये सारी चीज़ें ज्यूम करती है। और लिंडा थॉट दैट कि नोरा जो है उसने वो हार्डशिप्स भी नहीं की जो उसने अपनी मदर की डेथ के वक्त की, और अपने सेक्रीफाइस अपने लव को किया, और फिर दोबारा एक आदमी के साथ शादी की, उसकी भी डेथ होगी, फिर उसने मल्टीपल जॉब्स की। तो ये बेसिकली ये भी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं किस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर जो रोल ऑफ वुमेन है किस तरह वो जो है परफॉर्म हो रहा है। और इसी तरीके से, और जब क्रिसमस ट्री की जो चीज़ें हैं, जिस तरह वो चीज़ें स्नैच हुई होती हैं और उतरी होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, बेसिकली रिप्रेजेंट द नोरा's लाइफ। और वो किस तरीके से, और एट द एंड व्हेन द नोरा डिसाइडेड टू लीव द होम, कि वो अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी तलाश चाह रही होती है, अपनी रिकग्निशन चाह रही होती है एज अ वुमेन। जिस तरह मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर मेल को जो अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द एजुकेशन, फ्रॉम द जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हासिल है, उसे भी वही चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हों। तो बेसिकली ये फेमिनिस्टिक प्ले था जिसमें फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो थे वो प्रोमिनेंट फीचर थे। और एट द लास्ट जिस तरह नोरा जो है लेफ्ट द हाउस विद द लाउड साउंड ऑफ द डोर। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि साथ साथ जो थी डिस्कस मैंने की हैं थीम्स के हवाले से और सिंबलिज्म के। जो प्ले जो कि क्रिसमस इवनिंग से स्टार्ट हुआ था, और कहाँ कहाँ जो था नॉर्वेजियन सोसाइटी में वुमेन को किन किन, वेदर शी इज़ इन द होम, वेदर शी इज़ ऑन द जॉब, क्या क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी, क्या क्या सेक्रीफाइसेस देना पड़ा, और एटीट्यूड ऑफ द मैन टूवर्ड्स द वुमेन रिप्रेजेंट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, like my video and subscribe my channel.